जाएं। जितना कर सकते उतना करें और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप देख रहे होंगे योगिक ब्रेथ करने के बाद आपके कंधों में थोड़ा सा आराम आया है। अगर पूरी तरीके से नहीं तो थोड़ा तो आराम आया ही है। ऊपर नीचे। आप कंधों को ऊपर उठाएं और पीछे की तरफ धकेलें। हाथों को भी पीछे ले जाए, छाती को खोले, हाथों को साइड में स्प्रेड कर दें और गर्दन को पीछे झुकाएं। अब गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, बाईं ओर घुमाएं। ये एक्सरसाइज आपके शोल्डर ब्लेड्स के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। आपके शोल्डर्स में, आपके छाती में, पीछे की पीठ की तरफ जितना भी तनाव होता है ये उसे रिलीज करने में मदद करता है। स्पेशली आपका जो सर्वाइकल एरिया भी है वहां से भी जितना भी तनाव होता है शरीर में, फ्लो को इजीली खोल देता है। एंड स्लोली गर्दन को रोक के रखें बीच में और सांस लेते हुए सामने सीधा करें और हाथों को ढीला छोड़ के आगे की तरफ ले आए। अब अपने कानों को बाईं ओर की तरफ कंधे से छूने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि अब पहले जो स्ट्रेच कर रहे थे और अब जो स्ट्रेच कर रहे हैं दाईं ओर, वो और इजीली हो पा रहा है। इस फर्क को महसूस करें। स्माइल बना के रखें और सांस लेते रहें। एंड बैक टू द सेंटर। आंखें बंद रखें। शरीर और ढीला हो गया है और मन की जो स्थिति है अब बदल गई है, उसे महसूस करें। आंखें बंद रखें और लंबी गहरी सांसें लें। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ इन and out. Another long deep breath in and out. Another long deep breath in. लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे जाने दें। Become aware of the state of your mind. लंबी गहरी सांसें। आपका शरीर विश्राम कर रहा है। Your body is completely relaxed. उस स्थिरता को महसूस करें। धीरे धीरे शरीर और वातावरण के प्रति सजग होते होते अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है सबको? How are you feeling now? कैसा महसूस कर रहे हैं? You can show a thumbs up अगर बेटर लग रहा है। Very good, amazing, very nice. सब मैं चाहूंगी शिव कुमार जी आप यहाँ से आगे ले जाएं। मैं हैंड ओवर करती हूँ शिव कुमार जी को। हेलो शिव कुमार जी। यस। हाँ, आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो नहीं पाया है ड्यू टू टेक्निकल डिफिकल्टी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय कलीग and head of the Department of English and IQAC coordinator, Shiv Kumar Agrawal ji. Please introduce the speaker. Hello, Agrawal sir. Thank you. I am here. Yes. Okay. मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स से जो प्रतिभागी हैं उनके साथ आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स हैं उनका परिचय करके देना चाहता हूं। देखिए,
आज हमारे बीच जो 5 महानुभाव आए हैं, उपस्थित हुए हैं अपने अपने प्रेजेंटेशंस के साथ, वो सभी लोग जीवन के अलग अलग, दे आर फ्रॉम डिफरेंट facets of life, but they are closely associated with yoga and meditation. They are from different professions. But their passion is only one, that is yoga and meditation. They are giving their best to human life. In this online special session, we have Sri Shivkumar Ji Giri, Sri Avinash Ji Tiku, Sri Aniket Ji Namdev, Sri Smriti Ji Srivastav, and Sri Dipanshu Bansal. Sri Shivkumar Digambar Giri is a BE Civil. Born in 1959, he has 34 years of experience in Water Resource Management Department of the Government of Maharashtra. His area of interest are art of living, life skills, meditation, personality development. Friends, his contribution to Jalayukta Shivar Abhiyan in Maharashtra, a very renowned campaign, his name is associated with it. As such a dynamic and multifaceted personality is with us, I welcome him I offer him a very warm welcome. Thank you. Thank you. Thank you, Agrawal sir. Please carry on, Giri sir. Am I audible? Shivkumar Giri sir. Okay. Okay, carry on. Thank you. Hello. This is the introduction by Shivkumar of the Shivkumar. Thank you. So, Thank you. in the morning, we had in Pune, I'm right from Pune. We had in Pune one session of the Surya Namaskar. Surya Namaskar competition was there. And they have set a target of 108 Surya Namaskar in 40 minutes. Fortunately, by the Guru grace, I could complete 120 Surya Namaskar in 40 minutes. So, this is just because of I used to listen my Guru, that is Shri Shri Ravi Shankar Ji. I just want to start with it. So, everybody must be dreaming in the day and night also, no? Forget about the night dreams. In daydreaming, we must be thinking about something we are going to achieve, or कुछ तो भी लेना है, कुछ तो भी देना है. लेना ज़्यादा है, देना कम है. Dreaming में यही होता है कि लेना ज़्यादा होता है और देना कम होता है. तो what are those qualities which fulfills your dreams? क्या qualities है dreaming में? ड्रीमिंग में क्या क्वालिटीज चाहिए आप लोगों में, क्या पोटेंशियल चाहिए कि जैसे आपके ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं तो वो होता है कॉन्फिडेंस, इंटेलेक्ट, एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, नो, हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म, समथिंग लाइक दैट. सो मेनी थिंग्स आर देयर, नो, रिलेशंस, स्वीट माउथ, स्वीट स्पीकिंग. सो ये कहाँ से आता है? दिस क्वालिटीज आर वेयर फ्रॉम इट बॉर्न्स. इट इज दिस क्वालिटीज आर कमिंग फ्रॉम द माइंड. मन से आता है ना, इसका कॉमन सोर्स मन ही है. तो और हम मन के लिए कितना टाइम देते हैं? बिल्कुल छोटा सा टाइम देते हैं. अपने पेट के लिए टाइम देते हैं, अपने मुंह के लिए टाइम देते हैं, अपने आंखों के लिए टाइम देते हैं, लेकिन अपने मन के लिए कहाँ टाइम देते हैं? आप लोगों को मालूम है वेयर इज आवर माइंड? इज एग्जैक्टली वेयर इज आवर माइंड? whether it is in our heart or it is in our brain or where it is exactly. As per the science, the mind is just our body. एक फुट के दरम्यान वो माइंड रहता है अपनी बॉडी. द बॉडी इज विद इन द माइंड. इट इज जस्ट लाइक दैट. तो मन कहाँ रहता है?
मन कभी कभी भूतकाल में रहता है या भविष्य में रहता है, इट अदर इन द पास्ट और इन द फ्यूचर. सो ये जो है मन का, either in the past or in the future, it is only the stress. The stress comes right when where your mind oscillate right from the past to the future. और stress कहाँ से आता है? How the stress develop? When it is the inability of the mind, it is your inability to sustain or to solve or to restrain the situation around you, either from the people or either from the society. So, ये आप लोगों को मालूम होगा कि 70 to 80% ऑफ जो अपनी बीमारियां हैं, आप लोगों में से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो वो जो है वो साइकोसोमेटिक बीमारियां है. देखो, मैं आपको एक बात बताता है कि हम लोग पानी कितने पीते हैं दिन भर में? 2 to 6 लीटर्स. 6 से भी ज्यादा लोग पीते होंगे. कितना खाना खाते हैं? 2 to 4 kg. कितना खाना खा लेते हैं? हाउ मच वी ब्रीथ डेली? हाउ मच वी ब्रीथ? कैन यू इमेजिन? इट इज अबाउट 10,000 liters ऑफ द ब्रीथ वी आर गोइंग डेली. तो अगर इतना ब्रीथ हम लोग लेते हैं तो इतनी एनर्जी क्यों नहीं आती हम में? ये एनर्जी जाती कहाँ है इतनी ब्रीथिंग करके भी? क्योंकि वी आर यूजिंग आवर लंग्स कैपेसिटी जस्ट अबाउट 35%, नॉट मोर देन दैट. द गुड एथलेटिक्स यूजेस its capacity about 85%, mostly 85%, and we uses about only 35% of the lungs capacity. And how much toxins we expel right from the breath? 85%. ब्रीथ से हम 85% के टॉक्सिन्स अपने बॉडी में से बाहर निकलते हैं. लेकिन अगर 85% बाहर निकलते हैं तो उसके लिए ब्रीथिंग कितना चाहिए आपको? 100% चाहिए. So you should utilize our lungs capacity up to 85%. That's why the pranayam is there. That's why the pranayam is there. Pranayam, what is meant by pranayam? प्राण बोले तो प्राण यानी सूक्ष्म जैविक शक्ति, और आयाम बोले टू कंट्रोल इट, नियंत्रण करे उसको, दिशा दिशाए. तो प्राणायाम बोले तो सूक्ष्म जैविक शक्ति को नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना. तो ये देखो 4 सोर्सेस ऑफ द एनर्जी. आप सब लोगों को मालूम है 4 सोर्सेस ऑफ द एनर्जी क्या है. मैं आपसे पूछूंगा तो टाइम जाएगा. लेकिन पहला सोर्स है फूड, दूसरा सोर्स है स्लीप, अच्छी स्लीप रहनी चाहिए, अच्छा फूड जाना चाहिए अंदर, तीसरा जो है वो ब्रीथ, और फोर्थ है काम एंड कूल माइंड. अगर माइंड भी काम एंड कूल मेडिटेटिव नहीं रहा तो आपका एनर्जी का सोर्स, एनर्जी का लेवल बहुत डाउन हो जाता है, प्राण शक्ति बहुत डाउन हो जाता है. लेकिन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फूड, वी ऑलवेज यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फूड एंड द स्लीप. द रेस्ट जो है ना वो बाजू में रख देते. क्या? ब्रीथ और कूल एंड काम माइंड. क्योंकि ब्रीथ सस्ते में मिल रहा, सस्ते में नहीं फोकट में मिल रहा ना, तो फोकट में मिल रहा तो उसकी वैल्यू भी नहीं. कितना कम ब्रीथिंग करते हैं हम लोग, डीपली ब्रीथिंग करते क्या? कभी नहीं, सोचते भी नहीं. तो इससे प्रॉब्लम थोड़ी सी शुरू हो जाती है. स्ट्रेस की प्रॉब्लम इससे शुरू हो जाती है. जब आप गुस्सा करते हैं तो अपने सांस कैसी रहती? ऐसी चलती रहती है, जल्दी 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 रैपिडली चलती रहती. और जब आप दुखी होते हैं, रोते हैं, तो सांस कितनी रहती? गहरी होती है और उष्ण रहती है, हॉट रहती है, थोड़ी सी वार्म रहती है सांस. और जब तुम खुश रहते थे तो कैसी सांस रहती? ठंडक रहती है, उसमें बहुत हैप्पीनेस रहता है और बहुत खुले हुए रहता है, वो नेचर जैसी सांस रहती है. आपको मालूम है, आप लोगों को एक वन टीनेजर चाइल्ड हाउ मच ही स्माइल्स इन अ डे? He smiles about 400 times in a day. A small child, when he becomes a teenager, he smiles about 30 to 40 times in a day. At the age of 18 to almost 30. And when you become 40 to 50, how much you smiles? At the most 5 times in a day. And above 40, above 60, how much you smiles? मुश्किल से zero smiles करते. So what that caused to shift from 400 to 0? What that caused to shift from 400 to 0? That is the stress. That is not external forces. That is not at all the external forces. That is only the stress
or that is the inability of you to handle the situations and the persons around you. तो ये stress, what are the 3 important things in the life? यही तो है कि you have a mind stress free रहना चाहिए आपका mind, healthy body रहनी चाहिए, और third, have a good relationship. Have a good relationship. अगर रिलेशनशिप तुम्हारे अच्छे रहे तो डिप्रेशन के कोई फीलिंग्स आई ही नहीं सकती, स्ट्रेस की फीलिंग्स, डिप्रेशन उसके बाद में, जब पहले स्ट्रेस आता है उसके बाद में डिप्रेशन, तो स्ट्रेस की फीलिंग नहीं आए तो आएगी तो नहीं, तो डिप्रेशन की फीलिंग आपको कहाँ से आएगी? तो ये बात है। तो माइंड, अगर तुमको स्ट्रेस फ्री रहना है तो ब्रीथिंग पे कंट्रोल करना है। प्राणायाम बहुत सारे अभी यूट्यूब पे तो इतने बड़े बड़े प्राणायाम के कोर्सेस हैं चल रहे हैं, तो प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। और ये कोरोना कोविड में तो प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम प्राणायाम की एक पहली स्थिति आपसे मैं करा लूंगा। यहाँ की प्राणायाम की एक छोटी सी स्थिति, हमारे जब हम आर्ट ऑफ लिविंग का मैं फैकल्टी भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो आर्ट ऑफ लिविंग में हम एक प्राणायाम कराते हैं, उससे तुम्हारा माइंड बहुत फ्री हो जाता है, डायफ्राम लेवल बहुत एक्टिवेट हो जाती है, डायफ्राम जो लेवल है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति लगता है, और फ्रेशनेस लगता है। जब आपको चाय या कॉफी पीने की तल्लुक आ जाए कि चाय पीना है, कॉफी पीना है, अगर नहीं मिलती है तो ये प्राणायाम कर लो, अपने आप चाय कॉफी मिल जाएगी आपको। तो मैं आपको सिखाऊंगा, बैठे बैठे थोड़ा सा प्राणायाम करना है, उसके बाद में हम मेडिटेशन लेंगे। बहुत बढ़िया मेडिटेशन है, प्राणायाम के बाद में मेडिटेशन लेंगे हम, उसके बाद में शायद ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो ये प्राणायाम ऐसा ही है, इसको बोलते हैं, इसको कपालभाति भी बोलते हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं उसको, भस्त्रिका प्राणायाम। ओके, तो भस्त्रिका प्राणायाम जगह में ही करें हम जैसे कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी पे करें, या जमीन पे बैठेगा तो जमीन पे करें। तो ये हल्के से हाथ कंधों के सामने लाना है। मैं आपको पहले करके दिखाता आप लोगों को। हल्के से मुठिया कंधों के सामने लाना है, बाद में एक बड़ी सांस लेनी है, बाद में एक छोटी सी सांस लेनी, छोड़नी है। और जब मैं ये बोलूंगा कि इन, उसके बाद में आउट, इन आउट, मैं ऐसा बोलूंगा। तो इन करते करते ये ऊपर जाएगा हाथ, और हाथ खुले रहेगा, ऊपर जाता है वो खुले होएगा, और सांस अंदर जाएगी। इन आउट, आउट बोलूंगा, मैं बोलूंगा तब ये हाथ नीचे आएंगे, अपनी मुठ्ठियां बंद रहेगी और सांस बाहर निकल जाएगी। बस इतना ही करना है। ऊपर जाते वक्त सांस भरी जाएगी, मुठ्ठियां खुली रहेंगी, नीचे आते वक्त मुठ्ठियां बंद और सांस बाहर। इतना ही करना है, सिंपल सांस लेना है, भस्त्रिका प्राणायाम करना है हम लोगों को। इसके कम से कम 10 के 3 राउंड लेना है। ओके, तो देखो आपको क्या इफेक्ट आता है, तो हम यही के यही तय करेंगे। ऑफिस में भी मैं करता हूँ, कभी कभी बहुत थक जाता हूँ ना कभी काम करते करते, तो ये करा करता हूँ। ओके, तो देखो मैं पहले आपको करके दिखाता, विद इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। हम एक साथ में सब करेंगे अभी भस्त्रिका प्राणायाम। तो सब लोगों ने अभी अपनी हल्की सी मुठ्ठियां कंधों के सामने रखनी है, एवरीबॉडी। किसी ने वीडियो ऑफ नहीं करना है। अगर वीडियो ऑफ किया होगा तो मैं समझूंगा आप लोग कुछ तो भी चुप चुप के कैसे खा रहे हैं, कुछ तो भी। मैं तो यही समझूंगा या चाय पी रहेंगे। तो चलो, हाँ, एक सिंपल सी, एक सर्वसाधारण सांस ले और छोड़े। एक साथ भस्त्रिका, ब्रीथ इन आउट, 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 इन आउट। बिल्कुल हाथ ऐसे सीधे रखने हैं अपने जंघाओं के ऊपर, ऐसे हाथ सीधे रखने हैं। ऐसे हाथ रखे तो इसको महामुद्रा बोलती है, मेरे आप यू मस्ट बी नोइंग इट। इसको महामुद्रा बोलते हैं। भगवान की कभी तस्वीर देखी तो भगवान के हाथ ऐसे नहीं रहते अपने जंघाओं के ऊपर, ऐसे रहते। इसको बोलते महामुद्रा। तो इट एक्ट्स एज ए रडार, वैश्विक जो शक्ति है उसको खींच लेता है ये महामुद्रा में।
तो इसके ऐसा रखना है। दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ द भस्त्रिका। फिर से अपन हाथ किसका तो भी ऊपर ही है शायद, अच्छा नहीं किसी का नहीं ऊपर। तो चलो सेकंड राउंड करते हैं हम भस्त्रिका के, करते हैं सेकंड राउंड। ओके यूर रेडी, बी रेडी। लेकिन ये कंडीशन है, हाँ आपको कोई सजा नहीं देगा अगर चेहरे पे थोड़ी सी भी मुस्कुराहट लाई तो। थोड़ा सा हंसना है, नकली भी रहा तो भी चलेगा लेकिन थोड़ा सा हंसना है। ये देखो लाइक दैट। सो एक नॉर्मल ब्रीथिंग अंदर, एक सर्वसाधारण सांस अंदर और बाहर। इन ए नॉर्मल ब्रीथिंग, ब्रीथ इन आउट, 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 इन आउट। हो गया। फिर से महामुद्रा में। चलो हमने 2 राउंड कर ले, 2 राउंड में भाई खत्म कर देते इसको। ओके चलता है। लेकिन आपको महसूस हुआ होगा कि बहुत सारा फ्रेशनेस आ जाता है। नींद उड़ानी होगी तो ये करो, किसी को नींद आती होगी ना रात को और सोना नहीं चाहते होगे तो ये करो, आपकी नींद भी उड़ जाती है। चलो हम लोग छोटा सा एक मेडिटेशन करते हैं। बहुत बढ़िया मेडिटेशन है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो मेडिटेशन करके। तो एक मेडिटेशन, ये जो गाइडेड मेडिटेशन है, यू विल एंजॉय ऑल द सिम्टम्स ऑफ द मेडिटेशंस। उसकी इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है, मैं आपको बताते जाऊंगा मेडिटेशन। एक मिनट। मेडिटेशन में ये करना है कि अपनी आंखें बंद करके करना है और दोनों आंखें बंद करके करना है। एक आंख खोल के इधर उधर देखना नहीं। दोनों आंख बंद। मेडिटेशन में ज्यादा देर का मेडिटेशन नहीं, बिल्कुल अच्छा है। जैसे बैठे चेयर पे बैठे हो वैसे बैठे रहो। बी सीटेड ऑन द चेयर और ऑन द फ्लोर, और अपनी आंखें बंद कर ले। पूरी आंखें बंद कर ले, आंखें ना खोले। एक लंबी और गहरी सांस ले और छोड़ दे। Take a long and deep breath in and let go. Listen every surrounding sound. वातावरण के सभी आवाज को सुने। जैसे कि फैन की आवाज है, लोग बोल रहे हैं उसकी आवाज है, व्हीकल्स की आवाज है। इन सब ध्वनि की तरफ ध्यान दे। ये आवाज तो आनी ही है, उसे तुम रोका नहीं सकते हैं। इन सभी आवाजों का स्वीकार करें।
इस वातावरण में पूरी तरह से एकरूप हो जाए। और वैसे ही शांत बैठे रहे, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते रहे। Take a long and deep breath in and breathe out. अभी हम अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हैं। This body is the precious gift given by the God and the nature. Love deeply on your body. अपने शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर हम ध्यान लेके जाते हैं। राइट लेग, घुटना, राइट थाइज, राइट साइड की वेस्ट, लेफ्ट लेग की तरफ ध्यान लेके जाएं। वहां का घुटना, जंघाएं और अपनी कमर के ऊपर ध्यान लेके जाते हैं। अपने पेट के ऊपर ध्यान लेके जाते हैं। अपने पीठ के ऊपर ध्यान लेके जाते हैं। अपने छाती के ऊपर ध्यान लेके जाते हैं। राइट हैंड का कंधा, भुजाएं और पूरा राइट हैंड। लेफ्ट हैंड का कंधा, अपनी गर्दन के ऊपर ध्यान लेके जाते हैं। अपना चेहरा, अपना सर, दोनों आंखें, नाक, गाल, होठ, पूरा चेहरा, पूरी बॉडी की तरफ, पूरे शरीर की तरफ हम अपना ध्यान लेके जाते हैं। कुछ क्षण हम ऐसे ही बैठे रहे।
जो भी आवाज आ रही है उसे त्रयस्थ भाव से देखे, सुने, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लेते रहे। कुछ क्षण हम ऐसे ही बैठे रहे। एक लंबी और गहरी सांस ले और छोड़ दे। अभी हम अपने मन में उठ रहे विचारों की तरफ ध्यान लेके जाते हैं। उसके प्रति जागरूक होते हैं। वो विचार अच्छे हैं या बुरे हैं, उनसे पूरी तरह से एकरूप हो जाए। उनको अड़ाए नहीं, रोके नहीं, उन विचारों को आने दे। विचारों का आना ये उनका धर्म है। हम पूरी तरह से उनसे एकरूप हो जाते हैं। इसी अवस्था में कुछ क्षण बैठे रहे। एक लंबी और गहरी सांस ले और छोड़ दे। अभी हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं। ये भावनाएं सुखद हो या दुखद, बस उसे तहे दिल से स्वीकार कर ले। अपने आप में रहे, सांसों के प्रति ध्यान देते रहे। ये जो सांस है यही तो प्राण है, यही तो ऊर्जा है। हम ही शांति है और हम ही आनंद है। हम ही शिव है
और हम ही शिवालय हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अपनी भावनाओं के प्रति हम जागरूक होते हैं। अपने शरीर में उठ रहे स्पंदनों के प्रति जागरूक होते हैं। वातावरण के प्रति जागरूक होते हैं। एक लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ दें। और एक लंबी और गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपनी आंखें खोल सकते हो। हेलो, बोल, हाँ बोलना। ओके, सबकी आंखें ओपन हो गई। ओके, मेडिटेशन के पहले कैसा था और मेडिटेशन होने के बाद में क्या हुआ? माइंड को रेस्ट लेने के लिए और देने के लिए बस यही अंतिम उपाय है। ध्यान वो प्रक्रिया है जिससे मन को शांति मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है। अपने इमोशंस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्रीथ एंड द ब्रीथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द meditation also. So next to I am switching over to Avinash ji Tikku sir आए हैं. I welcome him. Aniket ji. Yes, yes, Priya, just a second. Hello. Hello. हाँ, अनिकेत सर को स्पॉटलाइट करो प्लीज. ओके. Hello. Wait a minute, sir. Okay, okay. Wait a minute. Introduction is necessary. Part of the Yeah, program. okay, okay, sir. Hello. Welcome, Tikuji. Thank you so much. Thank you. Now I would like to request Mr. Agrawal, sir. Now I would like to request Mr. Agrawal, sir, IQAC coordinator of our college, introduce the speaker. Introduce Tikuji.
Please, over to Agrawal sir. Yes. Agrawal sir, please. Thank you, Kamble sir. Okay. Once again, I am here to introduce to you today's second resource person, Avinash Ji Tiku. But before going to the resource person, I would like to make a statement that we have been hearing these days, since I think a day before yesterday, we have been listening to the news of Sushant Singh Rajput's suicide case. I think if Sushant Singh Rajput had some exercises on yoga and meditation, I think he would have not committed suicide. So from this, it has become clear that our professions earn us life, but meditation makes us or it teaches us how to live the life. And this thing is being taught to us by our today's resource persons, that is Sri Kumar Giriji, Avinash Tikuji, Aniketji, Smriti Srivastav, and Dipanshu Bansalji. Friends, Aniket Namdev is a BTech student. Smriti Srivastav is a media professional, and Dipanshu Bansal is a volunteer of art and living. Really, these things are very important essentials of our life. Money on one side and meditation on the other. If we meditate, we can live the life in a very beautiful manner. Now, I would like to divert myself to Avinash Tikuji. Sir, you are the Director of Youth Affairs of Art of Living. You are a public speaker, event organizer, an inspirer, and a relationship builder. Sir, your name is closely associated with Meri Delhi, Meri Yamuna campaign, Delhi Jal Board, Max Healthcare, Philips, the Times of India, Star News, the State Bank of India, Bajaj Allianz, and PRV Cinema, and most importantly, UNESCO. Sir, you are not a person, but an institution in yourself. On behalf of the Physical Education Department and on behalf of our IQAC, I offer you a very, very warm and hearty welcome and invite you with your presentation. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I welcome everybody for you being here for this yoga session. So, which mode of language should you will prefer, English or Hindi? Hindi and English both. Both, sir. Both, sir. Both. Okay. English and Hindi. I always have a very, what do you say, one of my sweetest corner of my heart lies in Maharashtra, because I've done my engineering from Maharashtra. I've done my engineering from Bombay. So whenever there is a session related to Maharashtra, Bombay, Pune, I just cannot help it.
So I'm an engineer. I've done my engineering, but I was introduced to this beautiful wisdom of art of living. And I'll share some of the things that why in this time, it is so vital. It is so extremely vital to have these techniques. Like as Giriji was saying, no, right? That, breath is the connection. But it has to be, see, all of us have gone through certain education. आप सब लोग पढ़ाते भी हैं और आप लोग पढ़े भी हैं. Isn't it? You have first learnt yourself and then you teach. So there is a very formal setup for how to get a degree, how to get commerce degree, how to get engineering degree, how to get arts degree, how to get journalist degree. Every way there is a proper methodology. But we somewhere forget that, this methodology also has to be applicable for the mind also, for which we are never taught anything. हम सब अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो हमारे खुद के अपने बच्चे हैं, उनको बोलते हैं कि बेटा गुस्सा मत करो. हम उनको बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन से पढ़ा करो. हम उनको बोलते हैं बेटा जब पढ़ने बैठते तो मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए. ये सब लोग हम सिखाते हैं, बट हम उनको ये नहीं सिखाते कि उस टाइम पे करना क्या जब मन जा रहा है. डू यू एग्री? सी समटाइम्स राइट नाउ आप भी 2 घंटे से बैठे हैं यहाँ पे, और जब भी आप बात सुन रहे हैं आपका भी मन थोड़ा इधर उधर चले जाता है. है कि नहीं? आप मेरी बात सुन रहे हो, बीच बीच में आ रहा है कि यार सच में 12 बजे खत्म होगा कि नहीं होगा सेशन. अभी 2 घंटे हो गए, अभी कब तक चलेगा? ठीक है यार, अभी अब सुन लिया बहुत योगा ध्यान सुन लिया बहुत हमने, बट खत्म कितने बजे होगा? तो आपका मन क्या भविष्य में जा चुका है बिना आपको बताए हुए. बिना आपसे पूछे हुए कि मैं जाऊं क्या भविष्य में, वो चला गया भविष्य में. वैसे ही थोड़ा पीछे कुछ को घर का काम आ रहा है, यार घर का काम रुका हुआ था, मेरे को थोड़ा कुछ घर का काम करना था, वो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो काम थोड़ा रुका हुआ है, मेरे को तुरंत करना पड़ेगा. तो आप देखेंगे हमारा मन जो है ये भूतकाल और भविष्य काल में बार बार भागता है. और आजकल क्या हो गया है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे जैसे मेरे डैड है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी थे, उनका लाइफस्टाइल बहुत फिजिकल लाइफस्टाइल था. उनको जाना पड़ता था, उनको परिश्रम करना पड़ता था. अभी जो लाइफस्टाइल है वो पूरा बदल गया है. अभी लाइफस्टाइल बैठने वाला लाइफस्टाइल हो गया है. हम भी देखिए, अगर आप भी देखेंगे हमारा पूरा दिन का अगर आप टाइम निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितना टाइम आपको फिजिकल वर्क करना है और बाकी टाइम आपको तो सिर्फ बैठ के बात करनी है या सुनना है या देखना है कि नहीं? हमारा मोस्टली काम अब लैपटॉप के सामने रह गया. तो जब ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो क्या होता है, इससे मन में बहुत सारे विचार आने शुरू होते हैं अगर हम उसके लिए कुछ एक्सरसाइज ना करें. और जब ये विचार आने शुरू हो जाते हैं फिर क्या होता है, ये कभी कभी बैठ जाते हैं, किसी एक विचार को लेके बैठ गए हम और वो विचार को हैंडल नहीं करने आया. फिर क्या होता है, फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं, नहीं मेरा क्या होगा, नहीं क्या हो चुका है, सच में क्या होगा, कोविड खत्म होगा कि नहीं होगा, अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा. और जहां पे ऐसे दोनों प्रकार के विचार मन में आने लगते हैं, यहां से फिर हमारे मानसिक स्थिति पे फर्क पड़ता है. इसीलिए आजकल जो डिजीजेस हैं, 80% डिजीजेस हैं जिनको साइकोसोमैटिक डिजीजेस बोला जाता है. साइकोसोमैटिक डिजीजेस का मतलब क्या है, मन और शरीर की दोनों. शरीर के स्तर पे आप उसको ठीक कर सकते हैं. अगर आपके हाथ में लग गई, आपकी उंगली में लग गई, तो आप उसके ऊपर ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, दवाई लगा सकते हैं, बैंडेज लगा सकते हैं और ठीक हो जाएगा. कुछ नहीं तो प्लास्टर करके ठीक हो जाएगा. बट जब मन के स्तर पे कुछ होता है, उसको ठीक करने का हमारे को किसी ने कहा ना, कभी रास्ता बताया और ना हमने कभी उस पर ध्यान भी दिया. तो इसीलिए जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, और मैं आपको इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्यों बता रहा हूं कि क्यों आवश्यक है. अभी का जो समय है ना, अभी बहुत इंटरेस्टिंग समय चल रहा है. वैसे भी ये साल किस दिशा से शुरू हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो आप देखिए, परिस्थिति आप कभी भी नहीं बदल पाएंगे. अभी जो कोविड हो रहा है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते. कितने भी आप अभी दुनिया के सबसे अमीर, पावरफुल, शक्तिशाली व्यक्ति हो, आप कुछ नहीं कर सकते. और यही एक्चुअली अभी हमारे को इतनी क्लियरली इसलिए दिख रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के साथ हो गया. बट हमारे को बहुत बारी क्या लगता है, अरे मैं परिस्थिति से बहुत बड़ा हूं. बट कभी कभी परिस्थितियों का असर है, आप बड़े हो मगर तब अगर आपको अपने मन के ऊपर विजय करना आता है. नहीं तो परिस्थिति हर टाइम आपके मन के ऊपर काबू कर लेगी. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो अगर आपको मन को हैंडल करने की टेक्निक आ गई, अगर आपको मन को संभालना आ गया, तो बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप अंदर अपने मन को ठीक रख सकते हो. क्योंकि फर्क तो अंदर ही पड़ता है, बाहर नहीं पड़ता. है कि नहीं? तो इसीलिए ये टेक्निक्स जानना जरूरी. सांस को एड्रेस करना बहुत जरूरी है. जैसे आर्ट ऑफ लिविंग
तो लास्ट 36 सालों से लोगों को मेडिटेशन और ब्रीदिंग की टेक्निक सिखा रहा है। अब उसकी और वैल्यू बढ़ गई है। ब्रीदिंग आप देखिए इतना इतना अमेजिंग पार्ट है, मगर हम सबसे ज्यादा उसको निग्लेक्ट करते हैं। अगर आप दिन में देखेंगे 24 घंटे में से आप कितना समय अपनी सांस पे ध्यान देते हैं, तो आप सच में सोच में पड़ जाएंगे। आप बोलेंगे अच्छा मैंने कब लास्ट को सांस को ध्यान दिया था। कभी ध्यान देते हैं, कभी हमारे को लंबी बिल्डिंग चढ़नी पड़ जाती है और लिफ्ट नहीं होती है, कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तब ध्यान आता है, या कभी कोई कुत्ता रात के टाइम पीछे पड़ जाए तो ध्यान आता है। बट अदरवाइज सांस के प्रति कोई हमारा ध्यान ही नहीं है। और आपको पता 70% हमारे शरीर के जो तनाव है, जो टॉक्सिन्स है, वो सांस से बाहर छोड़ सकते हैं, 70%। और इस टाइम पे हमारी अगर कोई चीज को हमारी पूरी बॉडी में स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, वो हमारी इम्यूनिटी और हमारी लंग कैपेसिटी है। यस और नो? सब, क्योंकि जो वायरस है किस पे अटैक कर रहा है, स्ट्रेट अवे लंग्स पे इफेक्ट करता है ना। और जो आर्ट ऑफ लिविंग की स्पेशल टेक्निक जो सुदर्शन क्रिया है, उसके ऊपर इतनी रिसर्च हो कि कैसे वो लंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है, कैसे ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, और उससे जिनको कोविड हुआ भी है उनकी रिकवरी बहुत फास्ट है। जो डॉक्टर्स वो प्रैक्टिस करके जाते हैं उनके लिए बहुत इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना मैं आपको बोल रहा हूं ना कि अति आवश्यक है ना। और दूसरी एक और चीज अगर आप मन की देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज करता है मन। क्या करता है, आप देखेंगे आपको कोई तारीफ कर देता है। अगर आपकी कोई तारीफ करता है, बोलता है बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, आपने शर्ट बहुत बढ़िया पहनी है, तो आप उस पर थोड़ा संशय करेंगे। आप बोलेंगे क्यों ये मेरी तारीफ कर रहा है इसको क्या मेरे से चाहिए, है कि नहीं। बट अगर आपको कोई गलत बोल देगा, बोलेगा तुम यार तुम्हारे जैसा कोई हॉरिबल इंसान ही नहीं है, तो आप उस पर तुरंत विश्वास कर लोगे। आप बोलोगे सही बोल रहा है, तू मेरे को खराब बोल रहा है, तू उससे भी खराब इंसान है। तो हम देखिए हमारी मन की वृत्ति कैसे रहती है, अच्छी चीजों के ऊपर हम संशय करते हैं, और जो बुरी चीजें, जो नेगेटिव चीजें, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, है कि नहीं। आप जो हम कर सकते हैं जीवन में अपने कार्य, उन पे हमारे को संशय रहता है, जो नहीं कर सकते उन पे पूरा विश्वास रहता है कि नहीं। आप अगर बच्चों में देखेंगे ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है। बच्चों को आप बोलोगे ये मत करिए, वो मत करिए, वहां मत जाइए, वो क्या बोलते हैं, मैं तो यही करूंगा। वो नेगेटिव चीज को ऑटोमेटिकली डाउट करते हैं और पॉजिटिव चीज पे विश्वास करते हैं। तो ऐसे हमारा बहुत भारी मन काम करता है। जो चीजें करनी है उस पे डाउट, जो नहीं करनी उस पे पूरा कॉन्फिडेंस होता है। और ये मन जो है ना, इसकी इतनी गहराई की स्तरें हैं कि हम अगर इस पे थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करने बैठे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मन की क्या क्या संभावना है ना। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारा जो ये संस्कृति है, हमारा योगा है, ध्यान है, ये हमारे देश में ना अभी भी इसकी वैल्यू है, मगर लोगों ने ना इसको थोड़ा सीरियसली नहीं लिया अभी तक। मुझे लगता है हाँ ठीक है, योगा बढ़िया चीज है, ठीक है बैठ लेंगे 5 मिनट सेशन में, क्या बड़ी बात है। और हमारे को योगा और ध्यान की कब बात याद आती है, जनरली जब हमारी तबियत थोड़ी खराब हो जाती है कुछ, फिर आप पूछते हो अरे कोई योगा की टेक्निक है। मेरे को ना बहुत लोग, मेरे रिश्तेदार पूछते हैं आप तो योगा सिखाते हो, अरे मेरी ना कमर में थोड़ा दर्द है, कुछ बताना मेरे ना कंधे में कुछ नहीं चल रहा, बताना कुछ जरा। बट योगा तो एक रेमेडी तो है ही, उससे ठीक तो हो ही सकती हैं चीजें। बट योगा जब लिखा गया, पतंजलि महर्षि ने जब योगा लिखा, तो उनने जो बहुत ही पहला एक सूत्र लिखा, उन्होंने लिखा कि योग करने का पर्पस ये है कि ताकि आप दुख की स्थिति में ही ना जाओ। और दुख सिर्फ शारीरिक नहीं है, उससे भी बड़ा दुख मानसिक दुख होता है। तो आप इस मानसिक दुख से कैसे दूर रह सकते हो, इसलिए योग और ध्यान करना आवश्यक है। मैं जैसे पूरे देश विदेश में जाके आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप सिखाता हूँ, यूएसए में सिखाता हूँ, यूरोप में सिखाता हूँ, और वर्ल्ड की मैं आपको बोल सकता हूँ कि टॉप यूनिवर्सिटीज में मैंने सिखाया है। जैसे MIT वर्ल्ड की बेस्ट इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, मैंने वहां पे सिखाया है, स्टैनफोर्ड में सिखाया है। वहां पे जब मैं सिखाता हूँ, उधर जो लोगों के अंदर रुचि है इस चीज की, मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि लोग इतने मैं बोलूंगा, एक तो एक्साइटेड रहते हैं, दूसरे इतने उत्साहित रहते हैं सीखने के लिए। उनको लगता है कि यार ये ऐसी चीज है जिस तक हम अभी तक समझ नहीं पाए। बड़ी आपको पता है आज से 2 साल 2.5 साल पहले अमेरिका में ड्रिंक ऑफ द ईयर, साल का ड्रिंक किस चीज, व्हाट वाज द ड्रिंक ऑफ द US ऑफ द ईयर 2017-14, आपको पता है?
मैं बताता हूं, उस ड्रिंक का नाम था गोल्डन मिल्क या टर्मरिक लाते। टर्मरिक लाते मतलब हल्दी वाला दूध। हम सब अपने घर में, हमारी मम्मियों ने, हमारी दादियों ने, हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं बेटा पी लो, हल्दी वाला दूध पी लो, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, अपनी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। बट हमारे में उतनी, बट अब क्या हो गया, जैसे विदेश ने उसके ऊपर ठप्पा लगाया, टर्मरिक लाते नाम बना दिया, अब यहाँ पे दिल्ली में आप किसी अच्छे कैफे में जाएंगे तो टर्मरिक लाते मेन्यू पे लिखा होगा और साथ में 150 रुपए लिखा होगा। और लोग बहुत खुशी से, बहुत स्टाइल से ऑर्डर करते हैं कि टर्मरिक लाते देना। क्या हो गया, चीज हमारी बाहर गई, रीब्रांड होके आ गई, वापस आ गई, और हमारे को लगा ये तो बहुत अच्छी चीज है। वैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये हमारे देश में लोम विलोम प्राणायाम तो सब लोग करते हैं, ये सुनो, करते हैं कि नहीं करते? किया होगा, देखा तो होगा आप सब लोगों ने लोम विलोम प्राणायाम करते हुए, है कि नहीं? अब सब लोग कभी करते हैं कभी नहीं करते, किसी का मन किया, कोई बैठा टीवी देखते देखते कर लिया। बट उतने कुछ एक साल पहले अमेरिका की मेडिकल जर्नल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च निकाली, बोला एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रीदिंग पैटर्न है और उससे बहुत बेनिफिट्स है, हार्ट का बेनिफिट है, कोलेस्ट्रॉल का बेनिफिट है, बहुत सारी 100 निकाल की, और बोले इसका नाम है कार्डियक कोहेरेंट ब्रीदिंग। तो दुनिया ने बोला ये तो बड़ी कोई नई चीज है, और जब देखा क्या है कार्डियक कोहेरेंट ब्रीदिंग, तो देखा, पता चला ये तो लोम विलोम प्राणायाम है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे कोई भी देश अपनी संस्कृति को लेके उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़ता है, हमारे देश में इसके ऊपर अभी भी थोड़ा, क्या मैं आपको बोलूंगा ना, थोड़ा प्राइड की आवश्यकता जरूरी है। देखिए, चाइनीज मेडिसिन पूरी दुनिया में बहुत लोग फेमस करते हैं, चाइना को कैसे अपनी चीज के ऊपर है, अमेरिका को कैसे, बट हमारा जो अगर एक जो देन है पूरी दुनिया को, जिसने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ा है, वो योग है और ध्यान है। और अगर हम इसको अपने जीवन में थोड़ा उतार लेते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि हम जहां पे हैं, अपने मन को, अपने शरीर को और सशक्त और मजबूत और स्ट्रांग बना सकते हैं। और उससे क्या होगा, आपकी जो भी दिनचर्या है उसमें आप बेटर हो जाएंगे। आपके ऑफिस में आपका टाइम, कम टाइम में ज्यादा काम करने लग जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, आप अपने घर पे ज्यादा समय देंगे, घर और ऑफिस को दोनों अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी, क्लास कैसी भी बिहेव करे आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाएगी, आप स्टूडेंट्स आपसे पढ़ने में बहुत उत्साहित रहेंगे, है कि नहीं? तो योग के जिसे गुण है ना, कि गुनाना गिनाना असंभव है। और जैसा बोला भी शिव कुमार जी ने, कभी भी ये जो मानसिक चीज की जो तकलीफ होती है ना, इसका सिर्फ एक कारण ये होता है कि जब इंसान की ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, जो हमारी एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, जब एनर्जी, व्हेन द एनर्जी गोज रियली 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 लो, यू फील वेरी बैड अबाउट योर ओन सेल्फ, आपको अपने बारे में अच्छा नहीं लगता है। और उसका एक सिंपलेस्ट तरीका क्या है, थोड़ा योग, थोड़ा ब्रीदिंग, थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा मेडिटेशन। आप देखिए, अभी शिव कुमार जी ने कराया, वो आपको कैसा लगा, आपको अंतर लगा होगा, महसूस है कि नहीं? 10-12 मिनट आपने ध्यान किया, तो इसको अगर हम अपनी दिनचर्या में ले आए, जैसे हम हर दिन ब्रश करते हैं, अपने दांत करते हैं कि नहीं करते? हर दिन करते हैं। ऐसा होता है कि आज नहीं करेंगे, आज अच्छा नहीं लग रहा ब्रश करना, ऐसा हो सकता है? हर दिन करते हैं ब्रश, हर दिन नहाते हैं, हर दिन बाथरूम जाते हैं, हर दिन सोते हैं, ये तो शरीर के स्तर पे हो गया। बट मन जो शरीर को भी चलाता है कभी कभी, उसके लिए तो हम कभी कुछ करते नहीं। इसीलिए डेंटल हाइजीन से भी इंपॉर्टेंट मेंटल हाइजीन है ना? और आप सब लोगों को मैं बोलूंगा कि थोड़ा समय निकालिए, हम आपको एक फीडबैक फॉर्म देंगे, अगर आपको अच्छा लगा, मैं आपको लिख देता हूं मैं फीडबैक फॉर्म का, tiny.cc/mmfed। तो ये मैंने भर दिया, एक सेकेंड, या निकित को चला गया है, ये मैं डाल दिया है। आपको लगे हम आपके लिए, हमारे ना, मेरा जो एक्सपर्टीज है, मैं स्पेशली यूथ का प्रोग्राम्स देखता हूँ, खासकर कॉलेजेस का। तो मैं IIT दिल्ली यूनिवर्सिटी, MIT में, सिम्बियोसिस में, IIM में जाके सिखाता हूँ वर्कशॉप्स, क्योंकि ये जो यंगस्टर की जो एज है ना हमारे इंडिया में खासकर, ये इनको ना थोड़ा वो थोड़ा हमारे को, मेरे को ना ऐसा, जब मैं भी कॉलेज में था, मुझे ऐसा ना दोनों तरफ से प्रेशर आता था, एक हमारा इंडियन जो सिस्टम है वो, और दूसरी तरफ से जो वेस्ट का सिस्टम है। तो जो इंडिया में जो लोग हैं ना, उनको बड़ा कंफ्यूजन है अभी, क्योंकि मॉम डैड से, मम्मी पापा से, हमारे घरों से एक अलग प्रकार के संस्कार हमारे को दिए जाते हैं।
बट जब हम इंटरनेट देखते हैं, मीडिया देखते हैं, तो वहां पे एक अलग तरह, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हर टाइम मन में बना रहता है कि कौन सा सही है, ये सही है, ये सही है। और दूसरी क्या बात है, इस एज की ऊर्जा का जो स्तर है इतना अनलिमिटेड होता है, तो वो ऊर्जा के स्तर को जब तक आप डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक वो चैनलाइज होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए देखेंगे कि इसी एज में सबसे ज्यादा रेबेल रहते हैं बच्चे। जो आप बोलोगे बोलेंगे नहीं सर ये नहीं करना है, मास बंक हो जाएंगे। मैं भी वैसे ही था, बट लकीली आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स मिला। मैं कॉलेज के लिए क्रिकेट का कैप्टन था, बास्केटबॉल का कैप्टन था, मैं खुद कश्मीर से हूं और सारी चीजें करता था, मगर वो दिशा जिसे कहते हैं ना, दिशा की थोड़ी कमी थी। बट उसके बाद क्या हो गया, खुद ही अपने साथ इतना अच्छा संतुलन बैठ गया, अपना मन शांत हो गया, फिर लगा कि नहीं कुछ और कर सकते। तो एज प्रोफेसर्स मैं आपको बोलूंगा कि स्टूडेंट्स के अंदर हम अगर इस विजडम को लेके आ सकें, जो टेक्निक्स, और हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का वर्कशॉप ना बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर से डिजाइन किया गया, जहां पे बच्चों के साथ एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स होती हैं, और उनको साथ साथ ये एजुकेशन भी देते हैं हम मेडिटेशन की। तो मैं आपको बोलूंगा कि हम ना अपने देश को लिटरली, हम अपनी यंग जनरेशन को अगर हम थोड़ा चैनलाइज कर दें, तो जैसी अभी परिस्थिति है हम अपने देश को एक अलग स्टेप पे लेके जा सकते हैं, जब सब यंगस्टर्स का मन एक नियंत्रित डायरेक्शन में, चैनलाइज डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव काम के लिए लग जाए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए, और आप जरूर इसको अपने 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 पर्सनल लाइफ में उतारे। आर्ट ऑफ लिविंग के वर्कशॉप्स होते रहते हैं, हम आपको डिटेल भेज देंगे अगर आप फीडबैक फॉर्म भरेंगे। अपने कॉलेजेस में देखिए कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। अभी AICTE ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ एक बहुत बड़ा MOU किया है कि जो जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं उसमें कंपलसरी आर्ट ऑफ लिविंग का वर्कशॉप फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया था, है ना, 6 दिन का, 2-2 घंटे का। अभी और अलग अलग डायरेक्टर्स में भी हो रहा है। निफ्ट इंडिया जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, उनने भी पूरे कंपलसरी अपने हर एक स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप आर्ट ऑफ लिविंग के साथ MOU साइन किया है, बिकॉज सबको ये समझ आ रहा है कि मानसिक चीज को हैंडल करना बहुत आवश्यक है कि नहीं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूं कि आप लोगों ने टाइम निकाला। योग के लिए जब भी कोई टाइम निकालता है, मेरे को लगता है वो अपने लिए टाइम निकाल रहा है ना, और अपने लिए टाइम निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है कि नहीं। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए बहुत सारी good wishes. Thank you so much. Thank you, Tikuji. Thank you. Thank you for your lovely and lively session. With the prior permission, or as a member of IQAC, we would like to join you in future also. Thank you. Thank you, Tikuji. Thank you so much. Thank you. Now, it's the time to propose vote of thanks. I would like to request our honorable principal, Dr. Kshitij Dhumar sir, to propose vote of thanks and declare the completion of the session. Thank you, Kamlesh sir. Thank you. Unmute. Okay. 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 On behalf of my college, I say a very big thank you to all of the resource persons of the day. That is Shivkumar Giriji, Avinash Tikuji, and their associates, yoga and meditation volunteers, Aniket Namdev, Smruti Srivastav, Dipanshu Bansal, for their lively and lovely demonstrations on yoga and meditation. I extend my thanks to our parent institution, Honorable Chairman Sri Dadasaheb Godse, CDC member, ex-principal C.R. Godse sir. Our sincere thanks to all the participants from all the corners of the country. I show my thankfulness to Anju ma'am, Dr. Sachin Kamble, the convener and coordinator, Professor Shivkumar Agrawal,
our IQAC coordinator. Thank you once again. Thank you all. Thank you so much. Aniket. Over to Aniket. Aniket? We are done, no, sir? Yeah, done. Okay. Thank you so Okay, much. okay, thank you. Aniket, close karo. Close, end the meeting. End the meeting.